Hello learners, welcome to Computer Pathshala Basic and Advanced. Today we will learn an important topic of MS Word which is called working with tables. Tables helps us organize information neatly in rows and columns. We can use tables to create mark sheets, timetables, fee records, attendance sheets and many other documents. So let's begin our chapter. Tables. Today we will learn how to create and work with tables in MS Word. A table is a collection of rows and columns used to organize data in a structured manner. Tables make information easier to read, understand, and compare. So MS Word offers a flexible feature of representing information in a tabular form so that we can organize data efficiently. Okay, a table consists of rows and columns. Rows means horizontal lines and vertical lines are columns. So using tables, we can arrange data efficiently and neatly. So the easiest way to create a table is by using the table button available on the insert tab. Next, here we will learn how to create table using a table button. So we'll click on the insert tab, then we'll click on table button which is present over here. Then we'll move the cursor over this grid. ये जो हमारा mouse है इसको हम इस grid के ऊपर move करेंगे. That means here we are choosing the number of rows and columns to insert a table. And then the number and columns that we will choose, these are reflect over here. So we will select the required number of rows and columns. And then the table will be reflected on a MS Word. It automatically creates a table. Next, how to create a table using insert table option. अभी तो हमने किसकी हेल्प से टेबल क्रिएट किया था? टेबल ग्रिड की हेल्प से. ठीक है, उसमें ऑटोमेटिकली हम रोज और कॉलम्स को सेलेक्ट कर रहे थे और हमारा टेबल बनके तैयार हो गया था. यहाँ पर हम क्रिएट कर रहे हैं टेबल इंसर्ट टेबल ऑप्शन का यूज करके. यहाँ पर हम इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे, टेबल पे क्लिक करेंगे, देन वी विल क्लिक ऑन इंसर्ट टेबल ऑप्शन एंड वी विल गेट दिस विंडो. इंसर्ट टेबल के ऑप्शन में हमें क्या क्या चीजें दिखेंगी? नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज. तो जितने भी हमें रोज और कॉलम्स चाहिए, हियर वी विल एंटर द नंबर ऑफ डिजिट्स एंड देन वी विल क्लिक ऑन OK button. So this method is useful when we need a large table with a specified number of rows and columns. Next is how to enter a data in a table. So after creating a table, we can enter information into it. We'll click inside the cell. ये जो सेल है, जैसे टेबल आपको दिख रही है, इसके अंदर ये जो छोटे छोटे इनको हम एक जो बॉक्स होता है टेबल का, उसको हम बोलते हैं सेल. जब हम इस सेल पे क्लिक करते हैं माउस से एंड देन वी स्टार्ट्स टाइपिंग. जैसे ही हम राइट एरो की दबाएंगे, जैसे ही तो वो हमारा जो कर्सर है वो सेकेंड कॉलम में आ जाएगा. फिर से राइट एरो की प्रेस करेंगे तो हम थर्ड कॉलम में आ जाएंगे एंड सिमिलरली विद अदर कॉलम्स ऑल्सो. ऐसे ही अगर हम लेफ्ट एरो की दबाते रहेंगे तो हम बैक कॉलम्स में आते रहेंगे. जैसे यहाँ पर हमने स्कैनर लिखा, फिर हमने लेफ्ट एरो की प्रेस करी, ठीक है, तो हम 30 पे आ गए. फिर से हमने लेफ्ट एरो की प्रेस करी तो फिर हम इस कॉलम पे आ गए, इस वाले सेल पे आ गए. यहाँ पर हम अपना डेटा लिख सकते हैं. अगर आप शॉर्टकट की यूज करना चाहें तो वो भी आप यूज कर सकते हैं, वो है शिफ्ट प्लस टैब. राइट मूव करने के लिए ओनली टैब की वी हैव टू प्रेस, ठीक है, और लेफ्ट मूव करने के लिए हम शिफ्ट के साथ टैब को प्रेस करेंगे. देन वील मूव टू द प्रीवियस सेल. So this information is entered cell by cell. Next we will learn how to edit the table. Table को edit कैसे करना है? Edit means once we have written the data, सारा data हमने लिख लिया है, अब उसकी editing कैसे करनी है? Editing means changing. उस टेबल में हमें कुछ changes करने हैं,
ठीक है, हमें रोज और इंसर्ट करनी है या कॉलम्स बढ़ाने हैं या कुछ रोज डिलीट करनी है या कुछ कॉलम डिलीट करने हैं, कोई डेटा कॉपी करना है, कोई डेटा पेस्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एडिटिंग। ठीक है, सो दिस इज नोन एज एडिटिंग। इफ वी वांट टू चेंज समथिंग इन अवर टेबल, वी कैन कॉपी ऑल्सो एंड पेस्ट ऑल्सो। यहां से कॉपी करके डेटा हम कहीं पर भी टेबल में प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, एडिटिंग बेसिकली हेल्प्स अस टू अपडेट इंफॉर्मेशन वेयर एवर नीडेड। तो जहां भी हमें कोई और इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है, ठीक है, जैसे यहां पर दिखाया आइटम है, स्टार्ट डेट ये जनवरी में विजिटर्स इतने आए, बाय द वे बाद में आपको पता चलता है कि 14 विजिटर्स थे, तो फटाफट आप इस सेल पे क्लिक करके यहाँ पर 14 लिख सकते हैं। तो सिमिलरली वी कैन एडिट अवर टेबल। नेक्स्ट, हाउ टू क्रिएट कॉलम्स एंड रोज इन अ टेबल। कॉलम और रोज कैसे क्रिएट करते हैं टेबल में, मीन्स एक बार आपने टेबल बना ली, बाद में आपको पता चलता है कि इसमें आपको और रोज और टेबल को एडिट करना है, मीन्स ऐड करना है। ठीक है, तो एडिशनल रोज और कॉलम्स के लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे रो को या कॉलम को। फिर हमें ये देखना है कि जो हमें रो या कॉलम जो भी इंसर्ट करना है वो किस साइड करना है, लेफ्ट में करना है, राइट में करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। व्हाट वी विल डू, वी विल डू राइट क्लिक ऑन द कॉलम। किसी भी कॉलम पे हम राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट का ऑप्शन हमें शो होगा। तो अगर हमें जो भी कॉलम है वो लेफ्ट में क्लिक करना है, तो हम मतलब इंक्रीज करना है या ऐड करना है लेफ्ट में, तो हम लिखेंगे इंसर्ट कॉलम्स टू द लेफ्ट। और अगर राइट में करना है तो हम लिखेंगे इंसर्ट कॉलम्स टू द राइट। ओके, लेफ्ट में हमें रो इंसर्ट करनी है, तो हम अगर ऊपर हमें रो इंसर्ट करनी है तो हम लिखेंगे इंसर्ट रो अबव, ये हम सिलेक्ट करेंगे। अगर हमें रो नीचे एक और इंक्रीज करनी है तो हम लिखेंगे इंसर्ट रोज बिलो। सो दिस इज बेसिकली यूज टू इंसर्ट न्यू कॉलम्स एंड न्यू रोज, कॉलम्स ऑन द लेफ्ट एंड राइट एंड रोज अबव एंड बिलो। ठीक है, तो अगर हमें और चीज ऐड करनी है, सो वी विल यूज दिस ऑप्शन विच इज नोन एज इंसर्ट। सो दिस एक्चुअली हेल्प्स टू एक्सपेंड द टेबल विदाउट रिक्रिएटिंग इट, क्योंकि अगर पूरा टेबल रिक्रिएट करेंगे इट विल टेक सो मच टाइम। हो सकता है आपका टेबल बहुत बड़ा हो, तो उसको आपको दोबारा रीडिजाइन करने में, लिखने में बहुत टाइम लगेगा। सो इफ यू वांट टू ऐड एनी कॉलम और रो, यू कैन यूज this tab. Now, next is how to change column width. Width means चौड़ाई। अगर हमें कॉलम की विड्थ बढ़ानी है तो उसके लिए क्या करते हैं, कभी कभी हम देखते हैं जो टेबल के कॉलम्स होते हैं वो बहुत ज्यादा नैरो होते हैं या फिर बहुत ज्यादा वाइड होते हैं। ठीक है, तो हमें उनकी विड्थ जो है वो एक्चुअली में अरेंज करनी पड़ती है, चेंज करनी पड़ती है। तो जिसकी भी आपको विड्थ कॉलम की या रो की, जब भी आप उसको अरेंज करते हो, मीन्स चेंज करते हो, तो यू विल सेलेक्ट द कॉलम फर्स्ट हुज विथ यू विश टू चेंज। ठीक है, उस कॉलम को आप सिलेक्ट करेंगे। फिर हम कौन से टैब में जाएंगे, लेआउट टैब में। लेआउट टैब में, लेआउट टैब आपको कहाँ मिलेगा, सबसे टॉप पे जो आपका मेन्यू बार है जहां आपके सारे टैब्स होते हैं वहां आपको लेआउट टैब मिलेगा। वहां प्रॉपर्टीज बटन में जाएंगे, जैसे ही प्रॉपर्टीज बटन में जाएंगे टेबल प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगी। टेबल प्रॉपर्टीज में आपके रोज और कॉलम्स होते हैं। फिर आप वहां से कॉलम टैब चूज करेंगे अगर आपको कॉलम में चेंज करना है, और रो टैब चूज करेंगे अगर आपको रो में चूज करना है। तो यहाँ कॉलम में करना है, हमने कॉलम टैब चूज किया। दिस टाइप ऑफ विंडो विल अपीयर, देन वी विल जस्ट चेंज द विड्थ। यहां से हम चेंज कर देंगे कि हमें कितना स्पेस चाहिए और कितने हमें विड्थ चाहिए उसकी। ओके, ऐसे ही रो टैब में जाके हम रो की हाइट भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, दिस इंप्रूव्स द अपीयरेंस ऑफ द टेबल एंड देन विल क्लिक ऑन ओके। जैसे ही हम ओके क्लिक करेंगे हमारी होल डॉक्यूमेंट में सारे टेबल पे, सारा जितना टेबल है उसके अकॉर्डिंग ही वो कॉलम उतने ही विड्थ का हो जाएगा या रो उतने ही हाइट की हो जाएगी। नेक्स्ट, हाउ टू स्प्लिट सेल। ओके, सपोज आपने एक टेबल बना ली है, अब आप चाहते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि एक एक जो टेबल का एक कॉलम होता है या रो है, तो ये जो एक पोर्शन होता है सिंगल, दिस इज नोन एज सेल। मीन्स अगर हम एक सिंगल बॉक्स की बात करते हैं तो उसको हम सेल बोलते हैं। तो अगर मुझे इस सेल को दो में स्प्लिट करना है, दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है, तोड़ना है, दैट मीन्स डिवाइड करना है एक सेल को मल्टीपल सेल्स में।
आप एक सेल को 2 सेल में भी डिवाइड कर सकते हो, 3 में भी डिवाइड कर सकते हो। अगर आपको मल्टीपल सेल्स में डिवाइड करना है तो आप क्या स्टेप्स करेंगे? फर्स्ट यू विल सेलेक्ट द सेल। कौन सी सेल को सेलेक्ट करेंगे? जिसको आपको स्प्लिट करना है। अगेन यू विल गो टू द लेआउट टैब। विच टैब? लेआउट टैब। लेआउट टैब के बाद आप स्प्लिट सेल पे क्लिक करेंगे। किस पे क्लिक करेंगे? स्प्लिट सेल पे क्लिक करेंगे। फिर आप नंबर ऑफ रोज लिखेंगे अगर आपको रो ज्यादा चाहिए उसमें। अगर कॉलम चाहिए तो आप कॉलम में नंबर्स बढ़ाएंगे कि 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, एंड देन वी क्लिक ऑन ओके। तो जितने आपने नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम लिखे होंगे तो उतने ही आपकी वो सेल डिवाइड हो जाएगी। 2 रो करोगे तो वो सेल आपकी 2 रोज में डिवाइड हो जाएगी। कॉलम अगर आप 3 चूज करते हो तो वो एक सिंगल सेल आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट है मर्जिंग द सेल। अब मर्जिंग कैसे होती है? जैसे आपका 2 कॉलम्स है या 2 रो है, ठीक है। जैसे मैं बात करूं, ये 2 कॉलम्स हैं, ये और ये, या फिर ये 2 रोज हैं। अगर इनको आपको मर्ज करना है, मीन्स आप उस सारे को एक सिंगल बॉक्स में लेके आना चाहते हो, देन यू विल यूज मर्जिंग। मर्जिंग मीन्स कंबाइनिंग 2 और मोर सेल इनटू 1 सेल। तो आपको अगर कंबाइन करना है तो आप क्या करोगे? आप पहले उतने सेल्स को सेलेक्ट करोगे जितने को आपको कंबाइन करना है, ठीक है। देन यू विल क्लिक ऑन द मर्ज सेल। ये भी हमें कहाँ मिलेगा? लेआउट टैब में। सो बेसिकली जितने भी आपके टेबल रिलेटेड ऑप्शंस हैं, टूल्स हैं, सारे के सारे हमें कहाँ मिलते हैं? लेआउट टैब के अंदर मिलते हैं, ठीक है। सो वाइल क्रिएटिंग अ टेबल हेडिंग, जैसे हमें स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड लिखना है या कोई भी हेडिंग करनी है तो उसके लिए हम अपनी सेल्स को मर्ज कर सकते हैं। दिस विल गिव अ नीट एंड प्रोफेशनल लुक। Next, we will see how to apply borders and shading. Okay, so borders and shading basically makes our table attractive. Okay, border से क्या होता है? It create lines around cell. सारे cells के चारों तरफ लाइन क्रिएट कर देता है, that is border. Shading है बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे? वी विल सेलेक्ट द टेबल फर्स्ट, जिस टेबल पे आपको बॉर्डर अप्लाई करना है, एंड देन यू विल यूज डिजाइन टैब, ठीक है। तो बॉर्डर और शेडिंग के लिए आप यूज करेंगे डिजाइन टैब को। डिजाइन टैब पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको बॉर्डर स्टाइल और बॉर्डर बटन शो हो जाता है, ठीक है। सो बॉर्डर स्टाइल को आप चूज करेंगे, वहां से आप बॉर्डर कलर चूज करेंगे और आप शेडिंग कलर भी चूज करेंगे। ये सारे ऑप्शंस आपको बॉर्डर बटन के अंदर मिलते हैं। बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन, यहाँ से आप बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हो और शेडिंग भी कर सकते हो। सो दिस मेक्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन स्टैंड आउट। क्लियर? नेक्स्ट है हाउ टू रीसाइज अ टेबल। सो रीसाइजिंग मीन्स, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, साइज चेंज करना। दैट मीन्स ईदर टू इंक्रीज द साइज ऑफ द टेबल और डिक्रीज द साइज ऑफ द टेबल। सो MS वर्ड प्रोवाइड्स द ऑटो फिट फीचर। एक फीचर होता है ऑटो फिट जो MS वर्ड प्रोवाइड करता है। ऑटो फिट कंटेंट्स, ओके, कंटेंट्स कौन से होंगे? ऑटो फिट ऑप्शन प्रोवाइड करेगा जिसमें हम ऑटो फिट कंटेंट हमको मिलता है। ऑटो फिट कंटेंट एडजस्ट करता है हमारी कॉलम विथ को। ऑटो फिट विंडो एडजस्ट करता है हमारे मार्जिन्स को। फिक्स्ड कॉलम विथ एडजस्ट करता है हमारे कॉलम को, ठीक है, और टेक्स्ट को। सो व्हाई दिस इज बेसिकली यूज, these options helps to create well organized table. Next is aligning the text. Okay, aligning again means alignment which controls the position of the text inside a table cell. ओके जिसमें आपको अलाइनमेंट दिखाना है, मीन्स जो हमारी पोजीशन है टेबल की वो टेबल सेल की उसको कंट्रोल कर रहा है। सो बाय डिफॉल्ट द टेक्स्ट अपीयर्स एट द टॉप ऑफ द सेल, ठीक है। जैसे ये टेक्स्ट यहाँ पर अपीयर हो रखा है, हम इसका अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। सेंटर करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा टेबल लिखा हुआ। राइट अलाइन करेंगे तो ये टेबल राइट में लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। टॉप लेफ्ट करेंगे तो टॉप लेफ्ट में आ जाएगा, बॉटम लेफ्ट करेंगे तो बॉटम में आ जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली वी कैन चेंज द 9 अलाइनमेंट ऑप्शंस आर देयर इन अलाइन टेक्स्ट। हाउ मेनी ऑप्शंस? 9 alignment means left, right, center, top left, top right, bottom right,
center left, center right. These are the 9 options which are available for the alignment control in a table. So student names can be center aligned for better appearance. Alignment improves readability and presentation. Next is calculation in a table. So MS Word can perform simple calculations inside table. Okay. Simple calculations means we can perform calculations on a numeric data. Click on the result cell. Then again we have to open the layout tab. Click on फॉर्मूला एंड सेलेक्ट द फॉर्मूला. जब हम लेआउट टैब में जाते हैं तो वहां पर हमें एक बॉक्स दिखता है जिसका नेम है फॉर्मूला. जब हम फॉर्मूला को क्लिक करते हैं तो उसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज हमें शो होते हैं. हम उस फॉर्मूला को सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट द फॉर्मूला एंड देन क्लिक ऑन ओके बटन. अब एक थोड़ा सा मैं दूसरा टॉपिक कवर करना चाहती हूँ जो कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि ये टॉपिक या ये चीज होती क्या है. तो वो टॉपिक है मेल मर्ज. So mail merge is a feature which is used to send the same letter to many people. Means एक ही लेटर अगर हमें बहुत सारे लोगों को भेजना है, ठीक है, एक ही टाइम पर भेजना है, एक ही डेटा भेजना है, तो वो एक साथ अगर हम मेल करेंगे तो वो किसके थ्रू हम करते हैं? वो हम करते हैं मेल मर्ज के थ्रू. अब क्या है, जैसे ऑफिस में होता है, कंपनीज में होता है, आप लोग देखते हो कि अब आप देखते हो जैसे कंपनीज वगैरह में होता है, ठीक है, कि एक ही लेटर है, ठीक है, और वो हर एम्प्लॉय को जाना है और एम्प्लॉय 2000 है, ठीक है, और हर एम्प्लॉय के घर पे वो लेटर जाना है, तो वो कैसे जाएगा? अगर आप कहोगे कि सिंपल लेटर जाना है तो हम मेल में सारे मेल आईडीज तो ऑलरेडी होते हैं, उनको डाल के और आप आगे फॉरवर्ड कर दो, सबको मेल चला जाएगा. ठीक है, वो आपकी बात सही है, सबको मेल चला जाएगा. लेकिन उनका एड्रेस, अगर हम चाहते कि उनका एड्रेस भी उस लेटर के अंदर लिखा हुआ हो और फ्रॉम भी लिखा हुआ हो, ठीक है, मीन्स उनका नेम और एड्रेस, हमें हर एक घर के अंदर वो लेटर भेजना है और सबके नेम और एड्रेस चेंज होने चाहिए अकॉर्डिंगली. जिसके घर जा रहा है उसका नेम और एड्रेस आना चाहिए. ठीक है, तो ऐसा अगर हम एक एक लेटर में करेंगे इट विल टेक सो मच टाइम. Yes, so we will use mail merge for it. This is a feature which is used to send a letter to many people by typing their names and address repeatedly. So mail merge automatically inserts the recipient information. So mail merge एक ऐसा फीचर है जिसके थ्रू हम उस इंफॉर्मेशन को एक ही बार में रिसिपिएंट की इंफॉर्मेशन एंटर कर देता है. सो मेल मर्ज एक ऐसा फीचर है जो ऑटोमेटिकली इंसर्ट कर देता है रिसिपिएंट की इंफॉर्मेशन को. रिसिपिएंट मींस जिसको भेजा जा रहा है. तो इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं? इट सेव्स टाइम्स, इट सेव्स एफर्ट, इट इज यूजफुल फॉर इनविटेशन लेटर, इट इज यूजफुल फॉर सर्टिफिकेट्स, इट इज यूजफुल फॉर नोटिसेस. सो मेल मर्ज क्या करता है? मेन डॉक्यूमेंट को डेटा सोर्स के साथ कंबाइन करता है. अब आप बोलोगे डेटा सोर्स क्या होता है और मेन डॉक्यूमेंट क्या होता है? मैं बता देती हूँ. जो मेन डॉक्यूमेंट है वो होता है टेक्स्ट, जो हमें भेजना है सबको, वो सेम होता है. मेन डॉक्यूमेंट सबका सेम होता है जो हमें सबको भेजना होता है. ठीक है. सेकेंड चीज होती है डेटा सोर्स. डेटा सोर्स क्या है? जैसे कि उस रिसिपिएंट का नेम, एड्रेस, सिटी, पिन कोड, टेलीफोन नंबर, ये सब डेटा सोर्स है. ठीक है. सो हम कुछ प्लेस होल्डर्स का यूज करते हैं, जैसे कि नेम, एड्रेस, सिटी, इनका स्पेस देते हैं और मेल मर्ज 3 स्टेप्स में दोनों को, मेन डॉक्यूमेंट को और सोर्स को कंबाइन करता है और सारे रिसिपिएंट्स को सेम डेटा विद देयर नेम्स एंड एड्रेस फॉरवर्ड कर देता है. तो वो 3 स्टेप्स कौन से हैं? वो है क्रिएटिंग अ मेन डॉक्यूमेंट, specify data source and merging the data source with the main document. मीन्स सबसे पहले तो हम अपना मेन डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट करेंगे, मीन्स वो डेटा जो हमें लिख के भेजना है. सेकेंड, हमारे पास हर एक पर्सन का डेटा सोर्स होना चाहिए, मीन्स उनका एड्रेस होना चाहिए. उसके बाद जो मेल मर्ज का काम है वो यहां से शुरू होता है कि वो मर्ज करता है डेटा सोर्स को और मेन डॉक्यूमेंट को. इससे क्या होता है? पर्सनलाइज लेटर्स क्विकली जनरेट हो जाते हैं.
ठीक है। अब दोनों को मर्ज करके वो क्या करेगा, हर पर्सन का नेम, एड्रेस, सिटी, पिन डेटा सोर्स से उठाएगा और मेन डॉक्यूमेंट से उस मेन डॉक्यूमेंट को उठाएगा जो डेटा आपको भेजना है, दोनों को मर्ज करेगा और सेंड कर देगा। तो ये वो ऑटोमेटिकली अपने आप करता है। सारे नेम्स एक एक करके, जो भी नेम एक के बाद एक नंबर वाइज आपके जो नेम लिस्ट है उसमें लिखा होगा, जो नेम लिस्ट आपकी ऑलरेडी एंटर्ड होगी मेल के अंदर। ठीक है। सो उन सब पर्सन के नेम, एड्रेस, सिटी, पिन जो ऑलरेडी एंटर्ड होते हैं हम लोगों के मेल में या कंपनीज में, जब आप आते हैं तो ये सारी चीजें रिकॉर्ड होती हैं। तो वहां से वो एक एक पर्सन का डेटा उठाता है, उसको मेन डॉक्यूमेंट के साथ मर्ज करता है और उसको आगे फॉरवर्ड कर देता है। सो थ्रू दिस वी कैन सेंड so many personalized letter or official letters to the different persons. Okay. So thank you. Now today we have learned tables, how to create table, how to enter data, how to edit the table, how to edit rows and columns, how to split the cell, how to merge the cell, the border and shading, resizing tables, alignment, calculations, and mail merge. These skills are very useful for creating professional documents in MS Word. अब आप सोचोगे कि MS ये टेबल्स के साथ मेल मर्ज क्यों बताया? वो इसलिए बताया क्योंकि जो मेल मर्ज में जो टेबल क्रिएट होती है वो MS वर्ड में ही होती है। कौन सी टेबल? वो जो आपका डेटा लिखा जाता है ना, मेन डॉक्यूमेंट, वो भी MS वर्ड में ही लिखा जाता है। ठीक है। ऊपर स्पेस छोड़ा जाता है नेम, एड्रेस और सिटी का, बीच में डॉक्यूमेंट होता है और वहीं से आपका एक टेबल क्रिएट की जाती है जिसमें सारे पर्सन्स के नेम, एड्रेस और पिन होते हैं। ठीक है। इसीलिए इनको कंबाइन करके डेटा शेयर किया जाता है। सो आई होप यू एंजॉयड दिस लर्निंग working with tables in MS Word. Okay, practice creating tables and try different formatting options on your computer. If you found this video helpful, please like, share, and subscribe to Computer Pathshala. Thank you for watching. Keep learning, keep